Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Am I audible? आवाज आ रही है? Yes, 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 ma'am. ma'am. ओके सो कल की क्लास में हमने टू वॉट मीटर मेथड डिस्कस किया था और मैंने कुछ तुम लोगों को काम दिया था करने के लिए पावर फैक्टर ऑन डिफरेंट पावर फैक्टर वॉट मीटर रीडिंग्स निकालने के लिए बोला था राइट यस्टरडे हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव किया था cos phi इज इक्वल टू cos of tan inverse under root 3 p1 minus p2 divided by p1 plus p2 यहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में राइट मैंने बोला था कि इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन रीडिंग्स ऑफ वॉट मीटर निकालना था फर्स्ट वाज यूनिटी पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू 1 इसके लिए मैंने कल डिराइव करवा दिया था यूनिटी पावर फैक्टर के लिए so unity power factor what was the reading of both the wattmeter readings Same, ma'am. 3 by 2 VRMS. 3 by 2 VRMS. vrms into irms as power factor is 1 cos phi value will be 1 ठीक है so this was for unity power factor second was for cos phi is equal to 0.5 what is the value of p1 at 0.5 phi is 1 by 2. I have 60 degrees. 60. 60 degree right so p1 is root 3 vi cos phi cos of 60 degree right 60 डिग्री होगा 30 माइनस 60 डिग्री होगा 30 minus 5 so this will become cos of minus 5 will be equal to cos 5 so this will become root 3 vi 30 degree cos of 30 degree similarly p2 is equal to root 3 times of vi cos 30 plus 5 so this becomes 90 degree यानी कि एक वॉट मीटर की रीडिंग क्या आएगी व्हाट इज दिस 0. इक्वल 0 एंड दूसरे वॉट मीटर की रीडिंग आएगी 3/2 वी आई सो वन वॉट मीटर विल रीड half of the power and second watt meter will read 0 so one of the watt meter will read 0 ठीक है and another watt meter will read total power total power will be read by wattmeter 1 and wattmeter 2 is reading 0 अगर कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया रहता है cos phi बताना होता है ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि इन केस one of the wattmeter is reading 0 and another wattmeter is reading 3/2 times of RMS voltage and current in case of three phase power what will be the power factor of the load so directly you can say the power factor of the load is 0.5
third type of effect is when the power factor is 0. जब पावर फैक्टर 0 होगा तो P1 P2 की वैल्यू बताओ. P1 is equal to 3 by minus root 3 by 2 bi. एक तो नेगेटिव P1 is है equal to minus 3 by 2 Yes. Pi एक and positive P2 एक is negative. equal to root 3 by 2, यानी equal and opposite, right? Equal and opposite. 1 minute. So yes, we were discussing for power factor 0, one of the readings is negative and another is positive, and both the readings are equal. So equal and opposite readings of wattmeter. ठीक है? Now how will you measure this negative reading from the wattmeter? wattmeter से कभी negative reading देखा है measure करते हुए? या can you measure this negative reading in the wattmeter in an MI type, MI या EMMC type wattmeter? कैसे measure करेंगे? सेंट्रल जीरो वाला इंस्ट्रूमेंट मेजर हुआ. EMMC टाइप ऑफ सेंटर जीरो वाला इंस्ट्रूमेंट EMMC टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है. जो भी AC, जितने भी AC टाइप ऑफ मेजरमेंट होते हैं वो उसमें हमेशा इंडिकेटर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड. ठीक है? सो फॉर मेजरिंग दीज टाइप, फॉर मेजरिंग द रीडिंग, नेगेटिव रीडिंग, either of the potential pressure coil or current coil connection should be reversed. ठीक है? तो अगर इन केस सपोज दिस इज योर वॉटमीटर और कनेक्शन करने के बाद अगर पावर फैक्टर 0 रहा या फाई की मतलब एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री, उस केस में क्या होगा, इंडिकेटर कुछ 0 से लेफ्ट साइड की तरफ इस तरीके से थोड़ा सा मूव होगा. और इस डिफ्लेक्शन की वजह से तुमको ये समझना है कि this wattmeter is not being able to measure the power. ठीक है? There can be two conditions. मतलब या तो पावर एक्चुअली 0 है 1 वॉटमीटर का, या फिर पावर नेगेटिव है. ठीक है? अगर हम इस तरीके का 2 वॉटमीटर मेथड से 3 फेज पावर मेजर कर रहे हैं and we see that one of the wattmeter reading is reading 0 or below 0, तो या तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो पावर हमारा एक्चुअली 0 है which can be because of power factor 0.5, और पावर इज बीइंग नेगेटिव जिसकी वजह से हमारा वॉटमीटर जो है वो पावर को मेजर नहीं कर पा रहा है. सो इन दिस कंडीशन वी विल चेक इट बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ either reversing the connection of either PC coil, pressure coil or current coil. प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों में से किसी एक का, दोनों का नहीं. ठीक है? जब हम करंट कॉइल का कनेक्शन रिवर्स कर देंगे तो अब जो होगा हमारा करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी दोनों में से कोई एक क्वांटिटी को हमने नेगेटिव कर दिया है जिसकी वजह से पावर पॉजिटिव हो जाएगा और हमको एक फिक्स्ड रीडिंग जो है वॉटमीटर में वो देखने को मिलेगी. ठीक है? नाउ द पॉइंटर विल शिफ्ट टू सम मतलब यूनिट जो कि विच विल बी इक्वल टू द यूनिट ऑफ द सेकेंड वॉटमीटर. ठीक है? सो दिस कैन बी द कंडीशन ऑफ मेजरमेंट इन केस ऑफ अगर रिवर्स करने पे, अगर कनेक्शन रिवर्स करने पे सेकेंड वॉटमीटर के बराबर रीडिंग तुमको मिल रही है, then you will directly say that the power factor of this load is 0
or the angle between the voltage and current is 90 degree. ठीक है, so this is the major effects of power factor on the readings of wattmeter in case of three phase power. ठीक है, तो basically cos phi is equal to 1, cos phi is equal to 0.5 और cos phi is equal to 0 पर हमने ये रीडिंग देखा. ठीक है, there is a table which I'll prefer drawing here so that कि तुम लोग को ये टेबल हमेशा ध्यान में रहे, क्योंकि जनरली इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड, यानी कि वॉट मीटर की रीडिंग दी रहती है और तुमको पावर फैक्टर पूछा रहता है, या फिर अल्टरनेटिवली पावर फैक्टर दिया रहता है और वॉट मीटर की रीडिंग पूछी रहती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ पावर फैक्टर 0, 60 degree, greater than 60 degree and 90 degree, your cos phi will be equal to 1, 0.5, less than 0.5 or 0. ठीक है, so just remember this table very well so that कि कहीं पर भी तुम you can, if you remember this table you can directly answer the question, calculate करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, so when your power factor is 0 degree, the reading of wattmeter 1 and reading of wattmeter 2 is first of all positive. ठीक है, this is also positive. And what we have seen कि जब हमारा phi की वैल्यू 0 होती है तो reading of both the wattmeter is equal and half of the power, total power, equal and half of the total power. So wattmeter 1 is equal to wattmeter 2 and total power will be equal to W1 plus W2. ठीक है, so this is total power. Clear? Now when your cos phi is 60 degree, your phi is 60 degree, cos phi is 0.5, उस टाइम पे एक रीडिंग जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी रीडिंग 0 है. ठीक है, wattmeter 1 will be reading 0. Okay, so wattmeter 2 will be reading 0 and wattmeter 1 will be reading total power. ठीक है, now for 90 degree भी हमने अभी यहाँ पर किया, एक रीडिंग पॉजिटिव होगी, दूसरी रीडिंग नेगेटिव होगी. W2 will be equal to minus of W1. So total power will be equal to 0 होगा. 0. Yes, Right. ma'am. Now calculate for any angle greater than 60 degree या cos phi less than 0.5. cos phi 0.4 लेकर के बताओ W1 और W2 की वैल्यू क्या आ रही है. Just calculated, ये जो वैल्यू है cos phi 0.4 लेकर के कैलकुलेट करो, या एंगल जो है वो ग्रेटर देन 60 डिग्री लेकर के कैलकुलेट करो, P1 और P2 की वैल्यू कितनी आ रही है. ग्रेटर देन 60 डिग्री. For any angle greater than 60 degree, for example 70 degree या 75 degree, P2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी. Just tell me that. For any angle greater than 60 degree,
फाई की वैल्यू अगर 60 से ज़्यादा है तो ये टोटल एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा, राइट, फॉर एनी एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री। तो P2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी या नहीं आएगी? यस मैम। ठीक है, सो फॉर एनी एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री, 60 डिग्री इज योर क्रिटिकल वैल्यू। इसके बाद जो हमारा W2 होगा, दिस विल शिफ्ट टू नेगेटिव। ठीक है, सो 60 डिग्री इज योर क्रिटिकल वैल्यू, जिसके बाद हमारा अगर 60 डिग्री से हम बढ़ा देते हैं तो 30 प्लस 60 डिग्री इज 90 डिग्री, जहाँ पर हमारा W2 इज कमिंग 0। सो W2 इज शिफ्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव। कोई भी एंगल अगर 60 डिग्री से ज़्यादा हुआ, 70, 75, 65 कुछ भी, तो हमारा 30 प्लस 65 विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसकी वजह से cos ग्रेटर देन 90 डिग्री विल गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू। सो एनी एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू, एंड बिकॉज वी हैव 30 माइनस 5, तो वहाँ पर हमको पॉजिटिव W1 मिलेगा। टोटल पावर विल बी इक्वल टू W1 माइनस W2। ठीक है, नाउ दिस विल इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन, और जब वो दोनों इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट पे टोटल पावर जो है वो 0 हो जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस टेबल। ये टेबल अगर तुम्हें याद है तो यू कैन सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 वॉट मीटर मेथड। 2 वॉट मीटर मेथड पे जो भी क्वेश्चन आता है इसी हिसाब से आता है। ठीक है, नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन 2 वॉट मीटर मेथड। In the measurement of power on balanced load, power on balanced load by 2 wattmeter method, in a 3-phase circuit, the reading of the wattmeters are the reading of the wattmeters are 3 kilowatt and 1 kilowatt respectively. The latter being obtained after reversing the connection of current coil. The power factor of the load will be कितना होगा? 0 का मैम। Power factor of the load, the power factor of the load will be, 1 second, ऑप्शन है 0.554, 0.377, C is 0.277 and D is 0.866। सी, दोनों तुमने अभी जो 0 बताया, यहाँ ऑप्शन में 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 0 हो सकता था और तुमको नेगेटिव मार्क्स भी मिल सकता था आसानी से। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों पावर इक्वल नहीं है। ठीक है, जब 0 होता है और नेगेटिव होता है पावर, उस टाइम पे दोनों पावर इक्वल होते हैं। ठीक है, so do not get confused. You have to solve this and calculate the value of cos phi by using this formula. Remember that one of the reading yani P2 is negative in this formula.
ठीक है, यहाँ पर P2 को नेगेटिव लेकर के सॉल्व करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos phi। डायरेक्टली हम 0 नहीं बोल सकते बिकॉज बोथ द वॉटमीटर रीडिंग्स आर नॉट सेम। मैम ऑप्शन दिखाइए। यस, दिस इज ऑप्शंस। मैम ए ऑप्शन आ रहा है। एनीवन एल्स? कुछ गड़बड़ किया होगा कैलकुलेशन में, देखो। ऑप्शन इज 0.277। करेक्ट ऑप्शन इज 0.277। मैम समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ओके। सो सी, दोनों वॉटमीटर का रीडिंग दिया गया है। एक का है 3 किलोवाट और दूसरे का 1 किलोवाट। ठीक है, यानी P1 P2 की वैल्यू दी गई है। 3 किलोवाट, 1 किलोवाट। ये दिया गया है द लेटर बीइंग, लेटर मतलब दूसरा वाला, ठीक है, द लेटर बीइंग ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द कनेक्शन, यानी 1 किलोवाट रिवर्सिंग कनेक्शन रिवर्सल के बाद आया है। P2 की एक्चुअल वैल्यू होगी -1 किलोवाट। मतलब कनेक्शन रिवर्स करके 1 किलोवाट आ रहा है, एक्चुअली उसकी वैल्यू -1 किलोवाट रही होगी। नाउ इफ़ यू सी दिस पार्ट जहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा था, इस केस में फॉर एंगल 90 डिग्री या cos phi 0 दोनों पावर इक्वल एंड ऑपोजिट थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट तो है पर इक्वल नहीं है। ये 3 किलोवाट है, ये -1 किलोवाट है, यानी कि cos phi की वैल्यू 60 से 90, सॉरी, एंगल की वैल्यू 60 से 90 के बीच में होगी और cos phi की वैल्यू लेस देन 0.5 और 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो लेस देन 0.5 में ये दो ऑप्शन तो पहले ही निकल जा रहा है। यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, B एंड C, राइट? नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos phi यूजिंग दिस फॉर्मूला, जहाँ पर तुमको P1 और P2 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। जस्ट दैट यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ P2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोवाट है, तो 3 -1 हो जाएगा, यहाँ 3 + 1 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। Is it clear now? Is it clear? Yes or no? यस मैम। यस मैम। 0.277 आ रहा है किसी का? इतना तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन। Anyone getting 0.277? देखो, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही निकल गए बिकॉज इट शुड लाई, इसीलिए ये टेबल बनवाया मैंने। बिकॉज अगर नेगेटिव होता है कोई दोनों में से एक पावर, तो हमारा cos phi का वैल्यू 0 से लेकर 0.5 के बीच में आएगा, लेस देन 0.5 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यानी कि 0.5 से कम आएगा, तो 0.5 से कम यही दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। Now you will have to calculate the value of cos phi। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना, we will do next question। सी, ये भी तुम्हारा IAS में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन। द रीडिंग्स ऑफ the 2 wattmeter connected to measure the total power in a 3-phase star connected 400 volt system
4000 watt and 6000 watt. ठीक है. Find the power factor and the line current. सिंपल क्वेश्चन है. cos phi उसी फॉर्मूला से निकालना है, सेम फॉर्मूला से cos phi निकालना है. और एक बार cos phi आ जाएगा तो मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू है, cos phi की वैल्यू है, तो लाइन करंट की वैल्यू निकाल सकते हो. निकालो जरा कितना आ रहा है. You can use phi as this tan inverse of under root 3 times of 6000. ठीक है. ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमेशा ग्रेटर रीडिंग माइनस स्मॉलर रीडिंग करेंगे. 6000 प्लस 4000, सो इससे फाई की वैल्यू आ जाएगी. देन कैलकुलेट cos phi. निकालो कितना आ रहा है. फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई. tan इनवर्स निकालना आता है ना, कैलकुलेटर है तुम लोग के पास या tan इनवर्स √3/5 कितना हुआ? तुम लोग निकालो, मैं थोड़े निकालूंगी. वहाँ एग्जाम में मुझसे निकलवाओगे. यूज डिजिटल कैलकुलेटर. tan इनवर्स तुम गूगल पे भी टाइप करोगे तो भी कैलकुलेट कर देगा, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो. कम से कम बाकी सब कुछ मैं कर दे रही हूँ, कैलकुलेशन तो पार्ट तुम लोग कर सकते हो ना. एकदम स्पून फीडिंग पे आ जाओगे तो कैसे चलेगा. These type of questions shouldn't take more than 1 minute to be solved. फैक्टर का वैल्यू आ रहा है 0.196. 0. cos phi की वैल्यू. यस मैम. cos phi की वैल्यू इतनी कम तो नहीं आनी चाहिए. माइनस में phi की वैल्यू कितनी आ रही है? अकॉर्डिंग टू माई 78 डेटा, 78 कुछ आ रहा है. अकॉर्डिंग टू माई डेटा cos phi की वैल्यू आनी चाहिए 90, phi की वैल्यू आनी चाहिए 19.106. कैलकुलेशन कर. तुम लोग इतना छोटा सा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो. लेट मी चेक. इट इज राइट. ये वैल्यू सही है. tan इनवर्स ऑफ 0.346 आ रहा होगा. इसकी वैल्यू तुम्हारी 2000 डिवाइडेड बाई 10,000 0.2 आ रहा है. यस मैम.
0.2 इंटू √3 करोगे 0.346 आएगा। आ रहा है 0.346। और कितना सॉल्व कराऊं? अरे कोई बोलो तो। 0.3 इंटू 0.2 करो, कितना आ रहा है? 0.2 इंटू √3। मैम इतना ही आ रहा है। cos फाई की वैल्यू आ रही है 0.967। ये तो अभी कैलकुलेट ही कर लोगे फाई की वैल्यू डाल करके। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट IL। मैम 15.29 करंट की वैल्यू। लाइन करंट। ओके, सो IL इज इक्वल टू 15.29 इज राइट। कैसे निकाला IL की वैल्यू? मैम सम ऑफ वाटमीटर रीडिंग इक्वल टू टोटल पावर √3 VL into IL cos phi। So sum of wattmeter reading P1 plus P2 is equal to √3 into VL/IL cos phi। यही निकाल, इसी से निकाला होगा। यस So मैम। दोनों वाटमीटर का रीडिंग है 10,000 अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ 400 इंटू IL इंटू 0.956 जो भी आ रहा था 967। ठीक है। So this will give you value of IL is equal to 15 point something. Okay, 15.27. Now let us do another question. This is very interesting question. ये भी गेट 2017 का क्वेश्चन है शायद। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स डू दिस। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, then I'll draw the figure in the next page. The load shown in the figure is supplied by (400 volt) 3-phase source to 3-phase source RYB sequence। ठीक है। The load is balanced and inductive। The load is balanced and inductive। Drawing 3464 volt ampere apparent power दिया हुआ है। ठीक है। When the switch S is in position N, the 3 wattmeters W1, W2 and W3 read 577.35 watt each। मतलब each wattmeter is reading this। ठीक है। हर सम नहीं है दोनों तीनों का। 3 wattmeter W1, W2 and W3 read 577.35 watt each। ठीक है। If the switch is moved to position Y, the readings of the wattmeter will be।
ठीक है, यहीं पे मैं ऑप्शन लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट पेज में आई विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। W1 is equal to W2 is equal to 0 and W3 is equal to 1732 watt. The option is W1 equal to 0, W2 is equal to W3 is equal to 1732 watt. C option, C option is W1 is equal to 866, W2 is equal to 0 and W3 is equal to 866. D option is W1 is equal to 0, W2 is equal to 866 and W3 is equal to 1732. ठीक है, so these are the option. Let me just draw the figure जिससे पता चले कि किस स्विच का बात कर रहा है जिसको N से Y में लेके जाना है. Just let me draw the figure. It will take another 2-3 minutes. So 3 watt meter है यहाँ पर. This is a question of 2 watt meter method only. बट यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है. तो ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज है. एंड दिस इज योर बी फेज. एंड दिस इज आई थिंक 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है ये गेट का. इतना अगर अच्छे से तुमको समझ में आएगा ये तो तुम्हारे 2 नंबर कहीं नहीं गए गेट में. और गेट में 2-2 नंबर के लिए बहुत रैंक जो है वो आगे पीछे हो जाती है. सो आर वाई डी एंड देयर इज एन न्यूट्रल. ठीक है, इस साइड में हमारा लोड लगा हुआ है LOAD. These wires are connected to the load like this. This is your neutral. और यहाँ पर एक स्विच है. ये तीनों कनेक्शन जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है, इससे एक स्विच लगा हुआ है जो कि Y के तरफ भी जा रहा है और N की तरफ भी जा रहा है. एंड दिस इज योर N. न्यूट्रल है और Y जो है वो Y फेज से कनेक्टेड है. ठीक है, दिस इज योर स्विच S. ये स्विच एक बार Y में लग सकता है, एक बार N में लग सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में तुमको दिख रहा है. ठीक है, दिस इज 2-वे स्विच. इसको या तो Y में कनेक्ट कर सकते हैं या तो N में कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ सारे जितने भी पोटेंशियल कॉइल हैं उनको इस तरीके से जोड़ देंगे. सो दिस इज योर वॉट मीटर 1. ये हमारा वॉट मीटर 2. ये हमारा वॉट मीटर 3. नाउ फर्स्ट टेल मी, इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? ठीक है, ये इतना डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? 3 वॉट मीटर कनेक्टेड है तीनों फेज में. और इस वॉट मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है, तीनों फेज का जो पोटेंशियल वॉट मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, पोटेंशियल कॉइल का एक एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है. नाउ दिस कैन बी, दिस entire connection can be connected to the neutral or connected to the wire. इससे क्या मतलब समझ रहे हो तुम?
इसको अगर हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे तो ये किस तरीके के मेजरमेंट को रिजेंबल करेगा? हमने 2 तरीके का 3 फेज पावर मैम मेजरमेंट 4 वायर। पढ़ा था। हाँ एग्जैक्टली, 3 वॉट मीटर 4 वायर मेथड, राइट। यानी कि अगर हम इस स्विच को N से कनेक्ट कर देंगे तो ये 3 वॉट मीटर मेथड हो जाएगा, यस और नो? अगर हम इफ switch is connected to N then this will become 3 watt meter method, और switch को अगर हम Y से कनेक्ट कर देंगे तो ये 2 watt meter method हो जाएगा। अगर हम इस switch को Y से कनेक्ट कर देते हैं, ये Y है, ठीक है, इस Y वाले watt meter 2 को देखो, ठीक है, watt meter 2 को देखो, watt meter 2 का ये वाला टर्मिनल इस कॉमन से कनेक्टेड है। अगर ये Y से कनेक्ट हो जाता है, इसका दूसरा टर्मिनल ऑलरेडी Y से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल कॉइल शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। वॉट मीटर 2 विल रीड 0, यस और नो? बस इतना बताओ इस कंडीशन में। यस मैम। जब हम स्विच को Y से कनेक्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में वॉट मीटर 2 का जो पोटेंशियल कॉइल है वो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, क्योंकि वो एक तरफ से ऑलरेडी Y से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से हम उसको Y से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो एट दैट कंडीशन व्हेन द पोटेंशियल कॉइल विल बी शॉर्ट सर्किटेड, वॉट मीटर 2 रीडिंग विल बी इक्वल टू 0 और नॉट? यस मैम। इतना क्लियर है? तो ऑप्शंस में हमारा ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? वॉट मीटर 2 इज इक्वल टू 0 हमारा 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन सी